Hello class, today we are going to do activity for angles. Activity for angles. इसके अंदर we are going to use this compass, ruler, chart paper, scissors, glue, pencil. That's it. Fine. So let us start. Firstly, you have to write number 1, 90 degrees angle. ठीक है? And keep the notebook aside. Now take this sheet. I have folded it into half. Okay, and I am going to draw the circle over here using the ruler and the compass. Here with the compass you can see both the tips are aligned. दोनों tips एक साथ होनी चाहिए और यहाँ से ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए. फाइन. ऐसा ना हो कि पेंसिल ऊपर या नीचे है इस पॉइंट से. These should be parallel. देखो हम एक रूलर को रख के देख रहे हैं. So these are at the equal level. Fine. And this should be tight. This should not be loose. This should be tight. This should not be loose. इतना लूज हो कि आप इसको मूव कर सके, पर ऐसा नहीं कि अपने आप मूव हो जाए. फाइन. नाउ टू मेजर इट वी विल यूज दिस रूलर एंड हेयर आई एम यूजिंग द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक पॉइंट को मैंने रखा 0 पर एंड द सेकेंड पॉइंटर दैट इज द पेंसिल, मैं इसको 4 सेंटीमीटर तक लेकर आई. फाइन. सो दिस इज द 4 सेंटीमीटर. अब मैंने यहाँ पर ले लिया 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. नाउ आई एम गोइंग टू कीप दिस पेंसिल पॉइंट हेयर. You have to keep this point here, keep the pencil down and make sure you are holding it really very tight, not very lightly. You have to hold it very tight. Now one method is you rotate the compass, which is very much difficult for many of you. Fine. So to avoid any mistake, what you can do is keep the pencil down, pick the paper from one corner, pick the paper and start rotating the paper without moving your pencil or compass. See, a perfect circle. Fine, you will get a perfect circle like this. Now we have to use the scissors to cut it out. Let's cut this out. And I have already folded it, so I'll get 2 copies of it. Fine, one this and one this. Fine, let's cut it. Be very careful while using the scissors. Okay, we have got 2 circles here. Fine. This is the soft and shiny side of the chart paper and this is the harsh side. So I have drawn it on the harsh side. One more tip, if you draw it over here, your compass might get slipped, but on this side it is a bit rough, so it holds a good grip and also your pencil holds a good grip. Fine. After this, keep this chart paper aside and use ruler to draw a line where, can you see this center point? You have to fold the chart paper like this into half, exact half. Fine. Fold this one also exactly half में fold किया, इसको भी half में fold किया. Open this and draw a line. I am using the rough side for drawing. फाइन. शाइनी साइड को जब हम पेस्ट करेंगे तो ऊपर की साइड आनी चाहिए, शाइनी साइड थोड़ा अच्छा लगेगा. एंड फॉर एवरी वर्क, फॉर पेंसिल वर्क, कंपास वर्क, वी आर यूजिंग दी रफ साइड. फाइन. सो एक के लिए आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन.
एंड देन फोल्ड इट लाइक दिस. ऐसे फोल्ड हो गया. नाउ फोल्ड इट लाइक दिस. हमने कितने पार्ट्स किए एक सर्कल के? 4 पार्ट्स हो गए. ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए एक सर्कल के. नाउ जब हमने इसको ओपन किया, सो देखो हम काउंट भी कर सकते हैं. देयर आर 4 पार्ट्स. ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से. ठीक है, डन. सेम प्रोसेस विद दिस. एक बार फोल्ड हो गया, देन फोल्ड इट अगेन. यहाँ पर भी 4 पार्ट्स हो गए. फाइन, हमने इसको ओपन किया. लेट्स ड्रॉ दिस लाइंस. This one also. ये हमारी लाइन्स ड्रॉ हो गई. फाइन, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू गो फॉर 90 डिग्रीज एंगल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 90 डिग्रीज एंगल. वी हैव टू कट आउट 90 डिग्रीज एंगल टू पेस्ट इट. व्हाट इज अ 90 डिग्री एंगल? हमारा टोटल कितना होता है? मैंने आपको बताया था 360 डिग्री. फाइन, इफ टोटल इज 360 डिग्री देन वन पार्ट इज 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 4 इज 90. इफ़ यू डू डिवीजन 360 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 90. देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 90 90 एंड 90. 9 4 आर 36 है ना, और 0 आ जाएगा एक. जब हम इसको ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा हमारे पास 4 पार्ट्स के लिए. फाइन, तो अब हमें क्या करना है? 90 डिग्रीज का एंगल इसमें से कट आउट करना है. कैसे करेंगे? सिर्फ इतना पार्ट हम कट कर लेंगे. सो दिस विल बी आर 90 डिग्रीज. लेट्स कट दिस आउट. डोंट वरी, ये जो हमने लिखा है ना, ये आपको लिखना नहीं है बिकॉज ये तो वैसे भी पेस्ट हो जाएगा. आवर शाइनी साइड इज दिस साइड ना. वी हैव टू कट दिस आउट. फाइन, ये आ गया हमारे पास 90 डिग्रीज का एंगल आ गया. अब हम इसको पेस्ट करेंगे. ठीक है, आप इसको ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं. लेट्स सी हम कैसे पेस्ट कर रहे हैं. आज here it is 90 degrees angle. We have to keep it here like this. On a line I am keeping it to make it straight. Okay, और मैंने इसको यहाँ रख दिया. 90 डिग्रीज हो गया प्रॉपर. ठीक है, नाउ मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स, यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हम इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं? बताओ. कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्रीज. बट इस बार क्या हो जाएगा? रे किस साइड है? इस साइड पे. और जब ऐसे था तो इसकी आर्म्स या फिर रे अगर हम बोलें तो वो इस साइड पे ड्रॉ हो रही है. उससे फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ 90 डिग्री. अगर मैं इसको ऐसे रखूँगी सो दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्रीज. फाइन, तब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट अस ड्रॉ अ लाइन. वी हैव टू यूज़ पेंसिल ओनली फॉर दिस. ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया ये पॉइंट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई है, दैट यू कैन स्टार्ट लाइन फ्रॉम हेयर, रे फ्रॉम हेयर, और यू कैन ड्रॉ अ लाइन एंड मेक अ पॉइंट. सो यहाँ से यहाँ तक आपकी ये रे हो जाएगी ये, और ये वाली लाइन एक्सटेंड हो जाएगी. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपका रे वाला जो पॉइंट है दैट इज़ दिस पॉइंट. फाइन, अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे. देखो अब फिर हम पेस्ट बिल्कुल इस पॉइंट पे ही कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो रे है वो यहीं से है. ठीक है, आप यहाँ नहीं पेस्ट करेंगे. आपने जो पॉइंट लिया आप वहाँ पेस्ट करेंगे. इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ी छोटी लग रही है. ठीक है, मैंने आपको कहा था कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को. ठीक है, ये हो गया. लेट अस पेस्ट दिस नाउ. देख लो जहाँ पर लिखा था आई एम पेस्टिंग दैट साइड, वहाँ पर मैंने फेविस्टिक लगा दी. ठीक है, नाउ वी हैव टू पेस्ट इट लाइक दिस. बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल पेस्टिंग. ये लो, हो गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यूज दिस पॉइंट एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर ऑल्सो. फाइन, एंड मेक एन arrow. Now we are naming this as A, B and
मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया ही था कि हम कैसे करते हैं नेमिंग्स. एंड 90 डिग्रीज के लिए दिस इज द सिंबल. दिस इज द सिंबल फॉर 90 डिग्रीज. फाइन. ये हमारा 90 डिग्रीज का एंगल हो गया. यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्या, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. और यहाँ पर ना आप 1 लिख दो और लिख दो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. परफेक्ट. ठीक है, दिस इज डन. नेक्स्ट लेट्स मूव टू 180 डिग्री. नेक्स्ट 180 डिग्रीज एंगल. अच्छा, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. इसको हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्रीज को स्ट्रेट एंगल. ठीक है, यू हैव टू राइट दिस. इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. नाउ यू टेल मी, हमारे पास ये था जो कटआउट जिसमें से हमने 90 डिग्रीज को निकाल लिया. अगर मैं यहाँ पर 2 90s को ऐड करूँ, 90 प्लस 90 कितना होगा बताओ. हम इसको हटा देते हैं अभी 360 को, क्योंकि हमने एक पार्ट निकाल लिया ना इसमें से. अब देखो 90 प्लस 90 कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्रीज. और यही हम एंगल हमें बनाना है. इसका मतलब मुझे ये 2 पार्ट्स चाहिए. ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये वाले दोनों पार्ट्स ले लें. फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ये वाले दोनों पार्ट्स ले लीजिए या फिर आप ये दोनों पार्ट्स ले लीजिए. इट इज़ 90 डिग्री. आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ये वाला और ये वाला पार्ट ले लें और 2 पार्ट्स में उसको पेस्ट करें. बट यहाँ पर पेस्टिंग भी करनी है और कटिंग भी, इसलिए हम दोनों साथ साथ वाला कोई ऑप्शन ले रहे हैं. या तो आप ये वाला ले लीजिए या फिर आप ये वाला ले लीजिए. फाइन, दिस इज़ 180. इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 180, और अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तब भी 180, बिकॉज दिस इज़ 90, 90 एंड 90. फाइन, सो लेट अस कट दिस आउट. कोई भी आप एक पार्ट निकाल दीजिए 90 डिग्रीज वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा. ठीक है, ये देखो, दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ सर्कल. हाफ ऑफ अ सर्कल इज 180 डिग्रीज. फाइन. Half of a circle is 180 degrees. So here we have to draw a line. Let us keep it and check if it's fine here. Yes. Okay, we will make a long line. This is not straight. We have to draw a straight line. Fine. एंड मार्क अ सेंटर पॉइंट. अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है ना, दिस इज दिस सेंटर पॉइंट, ये हमारे यहाँ पर आना चाहिए. फाइन, हमने यहाँ पे फोल्ड भी किया है तो हम बहुत इजीली इसको मार्क कर सकते हैं. हमारा ये सेंटर पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इसको बिल्कुल स्ट्रेट हमें यहाँ पर ऐसे पेस्ट करना है. फाइन, लेट अस पेस्ट इट. पॉइंट से पॉइंट टच करके एंड देन वी हैव टू पेस्ट इट. ठीक है, नाउ वी विल राइट दिस पॉइंट हियर and we will mark it as 180 degrees and mark it as angle 2. ठीक है, मैंने इसको एंगल 2 मार्क कर दिया. इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया P, Q and R. आप कोई भी नेम दे सकते हैं, X, Y, Z. ठीक है, दैट इज़ नॉट एन इशू. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, जैसे हमने यहाँ लिखा था एंगल P, Q, R. एंगल कहाँ पे बन रहा है, Q पर बन रहा है, तो सेंटर में एंगल Q आएगा. Angle PQR is equals to 180 degrees, comma angle Q is equals to 180 degrees, है ना एंगल Q पर, और एंगल 2 is equals to 180 degree. हम किसी भी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं. These 3 are the methods जो हमने अभी लास्ट क्लास में भी सीखे थे. Fine. Now the next part is 30 degrees angle. Let us write third point
we have to go for 30 degrees angle. Now this will be an acute angle. ठीक है, ये एक acute angle बनेगा हमारा. acute angle क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं. अब हमारे पास ये है, एक पीस बच गया है, हम इसको भी यूज़ करेंगे बिकॉज सर्कल के अंदर हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 360 होगा. अभी हमने कितना यूज़ किया है? 180 प्लस 90. ठीक है, 270 यूज़ किया है अभी हमने. हमारे पास 90 डिग्रीज अभी भी बचा हुआ है. इस 90 डिग्री में से हमें 30 डिग्रीज कट आउट लेना है. 30 डिग्रीज का कट आउट हम कैसे लेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ प्रोट्रैक्टर. ठीक है, अब हम अपना प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे. ठीक है, वी विल कीप इट हियर and mark an angle of 30 degrees on it. अपना जो पॉइंटर है उसे हम इसके साथ मैच करेंगे. ठीक है, ये मैंने प्रॉपर 90 डिग्रीज पे रख लिया इसको. अब हमारी शीट छोटी है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे एंड देन व्हेन वी विल रिमूव इट तो बहुत आराम से रिमूव करेंगे. एंड लेट्स जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये हमारा 30 डिग्रीज का एंगल बन गया. फाइन, ये हमारा 30 डिग्रीज का एंगल बन गया. ये वाला जो है, दिस इज़ योर 30 डिग्री एंगल. अब आप मुझे बताओ, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30. 90 माइनस 30 इज़ 60 डिग्रीज. वेरी गुड. सो अब हमारे पास ये कितना बच गया? ये बच गया हमारा 60 डिग्रीज. ठीक है, लेकिन इस 60 में से वी नीड ओनली 45. हम इसमें से सिर्फ 45 यूज़ करना चाहते हैं. तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे रखेंगे, ये वाली लाइन को स्ट्रेट. ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे. फिर से हम इस पॉइंटर से अपने प्रोट्रैक्टर के पॉइंटर को ज्वाइन करेंगे. आपको आई नो कि अगर आप अलग अलग सर्कल्स लोगे तो बहुत ईजिली आप कटआउट्स निकाल लोगे, लेकिन एक सर्कल से ही हम कैसे एंगल्स के कटआउट्स निकाल सकते हैं, यही ये एक्टिविटी है. सो यू डोंट हैव टू यूज़ अदर शीट्स और अदर सर्कल्स. ऐसे तो मेरे पास भी ऑलरेडी सर्कल्स हैं. आई एम नॉट यूजिंग दैट, आई एम यूजिंग ओनली दिस, बिकॉज हमें यही देखना है कि हम एक के अंदर से 360 डिग्रीज में से कितने एंगल्स हम कौन कौन से निकाल पा रहे हैं. फाइन. ठीक है, अब हमारे पास ये वाली लाइन देखो स्ट्रेट आ गई और ये हमारी देखो 60 डिग्रीज आ गई. इसका मतलब ये हमारा पूरा 60 डिग्रीज का एंगल अभी भी इसमें है. फाइन, ये 60 है तो हम यहाँ से अब हमें 45 डिग्रीज का बनाना है, क्योंकि 30 के बाद मैं कौन सा कराने वाली हूँ आपको? 45. सो दिस इज़ 10, 20, 30, 40 एंड 50. 40 और 50 के बीच में देखो एक बड़ी वाली लाइन है, जैसे हमारे पास रूलर में होती है. रूलर में क्या होता है कि 1 और 2 के बीच में एक बड़ी वाली लाइन होती है, वो 5 का पॉइंट होती है. तो इसके अंदर 1 और 2 की जगह क्या है? 40 और 50. 40 और 50 के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में कौन सा नंबर आएगा हमारे पास? 45. तो वी विल मार्क इट हेयर. ठीक है, एंड देन रिमूव इट वेरी वेरी केयरफुली विदाउट मूविंग द शीट. फाइन, एंड नाउ जॉइन इट टू दिस पॉइंट. ठीक है, इस वाली लाइन को इरेज कर दो. ये हमारे पास कितना आया? हमारा 45 डिग्रीज. अब आप मुझे बताओ, 30 और 45 यहाँ पर है, 90 एंगल था, है ना? देखो पूरा 90 डिग्रीज का ये एंगल है हमारे पास, जिसमें मैंने 30 निकाल लिया, 45 निकाल लिया. अब हमारे पास ये वाला एंगल कितना है? 30 प्लस 45 इज़ 75. 75 को हमें 90 में से माइनस करना है. सो दिस इज़ 15 डिग्रीज. ठीक है, दिस इज़ 15 डिग्रीज. फाइन, अब हमें पता चल गया ये 30, 45 एंड ये 15. हमें 15 वाला यूज़ अभी नहीं करना, क्योंकि हमने एक्टिविटी में कौन कौन से लिए हैं? 90, 180, 30 एंड 45. और एक हम ऑब्ट्यूज एंगल करेंगे, जिसके लिए हमने ये वाला सर्कल अभी तक सेव किया है. फाइन, तो अब इसमें से 2 कटआउट्स निकालने हैं, एक 30 डिग्रीज और एक 45 डिग्रीज का. इसको हम कटआउट निकाल लेते हैं फटाफट से. ये देखो, एकदम स्ट्रेट निकालोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं. ये लो, एंड 15 डिग्रीज रिमूव दिस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस. ठीक है, 15 डिग्रीज एंगल हम वर्क एक्टिविटी में नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको कभी कट करना हो सो यू कैन कट 15 डिग्रीज ऑल्सो. फाइन, अब हमें पता है दिस वॉज 45 डिग्रीज एंड दिस इज 30 डिग्रीज. लेट अस पेस्ट इट. 30 डिग्रीज के लिए वी अगेन गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट लाइन.
over here. इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 90s में क्या किया था, 90 डिग्रीज में मैंने पूरी एक लाइन बनाई थी. इस बार मैं ये वाली लाइन नहीं बना रही. एंड दैट इज़ योर चॉइस. आप इस लाइन को लंबा बनाइए या ना बनाइए, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप रे कहाँ से ले रहे हैं, बी पॉइंट से. इसमें जो दो आर्म्स हैं वो कौन सी हैं आपकी, बी ए एंड बी सी. फाइन. इसलिए यहाँ पर इस वाली लाइन को बनाएं या ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम एक सीधा रे से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस बार मैं एक रे से स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट फॉर द वेराइटी कि हमने वो कर लिया तो अब हम ये वाला भी कर रहे हैं. ठीक है. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. Fine, and make an arrow. This is your point, and here you have to paste this 30 degrees like this. Fine, let us paste this. थोड़ा सा भी केयरफुली काम करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी और अच्छे से आपका काम हो भी जाएगा. फाइन. अब हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है. लेट्स ड्रॉ अ रे, नॉट अ लाइन. लेट्स ड्रॉ अ रे. ये लो, ये हमारा एक आर्म ड्रॉ हो गया, ये इसकी दूसरी आर्म ड्रॉ हो गई. फाइन. अब हम इसको भी नेमिंग दे देते हैं, XYZ दे देते हैं इस बार. फाइन. दिस इज एंगल XYZ. इसके लिए लिखेंगे फटाफट से एंगल XYZ. आप देख रहे हो Z पर हमारा एंगल बन रहा है, इसलिए Z को सेंटर में रखा है. इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. और क्या लिख सकते हैं, एंगल Y इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. और क्या लिख सकते हैं, इसको हम थर्ड एंगल मार्क कर लेते हैं कि हमारा थर्ड एंगल है. तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. फाइन. डन. अब इसके बाद हमें 45 डिग्रीज वाला पेस्ट करना है. हम ऑलरेडी उसको कट कर चुके हैं. सो लेट अस पेस्ट इट राइट हियर. फोर्थ नंबर 45 डिग्रीज एंगल. फाइन. लेट अस ड्रॉ अ लाइन. Let us draw a ray. Fine. We have to mark this point as the starting point of the ray, and here we have written so many things, so we are going to erase it. ये सब कुछ मैंने आपको explain करने के लिए लिखा है. ठीक है. This is just for the explanation. This is 45 degrees angle. Let us paste this over here like this. So this will be 45. This is exactly half of what? 45 किसका half होता है, जल्दी से मुझे बता दो. 45 is half of what? 45 is half of 90. 90 को जब हम हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 45. मुझे ये बताओ, सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर हमने कितने 90 डिग्रीज को कट कर सकते हैं? How many 90 degree angles can be cut from one circle? Yes, 4. Because हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने 4 थे ना हमारे पास 90 डिग्रीज, 4. अब अगर ये 4 हो सकते हैं 90 डिग्रीज और 45 इसका हाफ है, हाफ, इसका मतलब है कि एक 45 और एक और 45 होगा, तब जाके आपका 90 डिग्रीज बनेगा. तो हम एक सर्कल में से कितने 45 डिग्रीज के एंगल्स को कट कर सकते हैं, बताओ. एक एंगल 45 डिग्री का है, हम कितने एंगल्स कट कर सकते हैं एक सर्कल में से 45 डिग्रीज के? 90 के 4 थे तो 45 के 8 हो जाएंगे. फाइन. ठीक है. नाउ इसके लिए भी हम कोई नेम रख देते हैं, MNO. MNO. ठीक है. दिस इज MNO. नाउ मार्क दिस एंगल as angle 45 degrees and let me make it 4 angle. ठीक है. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, we have to write angle MNO. MNO is equals to 45 degrees. Angle N
एन पर बन रहा है ना एंगल, तो इट इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज एंड व्हाट वी हैव नेम दिस एंगल एज 4. तो एंगल 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 45 डिग्रीज. फाइन. इसके दोनों आर्म्स कौन से होंगे, एन एम एंड एन ओ. ठीक है, जो दो रेज होती हैं जिनके बीच में एंगल बनता है वो उसकी आर्म्स होती हैं. फाइन. इसके बाद वी हैव टू डू नेक्स्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल्स हमने दो करे हैं, वी आर गोइंग टू डू वन ऑब्ट्यूज एंगल ऑल्सो. तो नंबर 5 इज 150 डिग्रीज एंगल. वी आर गोइंग टू मेक अ 150 डिग्री एंगल. अब 150 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप मुझे ये बताओ, वी नीड अ कंप्लीट सर्कल और वी नीड अ हाफ सर्कल. यस, वी नीड हाफ सर्कल, क्योंकि हाफ सर्कल के अंदर ही हमारे क्या हो जाएंगे, 180 डिग्रीज हो जाएंगी. तो 180 से तो कम है 150, तो हमें हाफ सर्कल की नीड है. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक आवर प्रोट्रैक्टर. देखो हम इसको कैसे रखते हैं, हम इसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं, लाइन से लाइन करके. अगर आप सीधा रखेंगे इसको तो आपको कोई इशू नहीं आएगा. अगर आपको थोड़ा सा हिल भी जाएगा ना, यू कैन प्लेस इट बैक. ठीक है, आप इसको फिर से सीधा करके रख सकते हैं. आपने ये रख लिया. मेक श्योर टू कीप अ रूलर हेयर. फाइन. अब ये कहीं नहीं हिलेगा. नाउ टेक आउट योर प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट आपने इसके ऊपर रखा, जो हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट है. एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया. नाउ चेक. अब हम चेक करेंगे, अगर हम इस साइड से मूव करें, मैंने आपको कहा था हम चाहे इस साइड से मूव करें या इस साइड से मूव करें, वी हैव टू यूज द रूलर दैट इज स्टार्टिंग विद 0 डिग्रीज. जो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है हमें वही वाला रूलर यूज करना है. अगर मैं यहाँ से लूँगी तो ये आउटर वाला स्केल यूज करूँगी, और अगर मैं इनर वाला इस साइड से मूव करूँगी तो मैं इनर वाला यूज करूँगी. ठीक है, मैं इस साइड से मूव कर रही हूँ, बट इस साइड से मूव करना इज ऑल्सो फाइन. बट यहाँ से फिर आप आउटर रूलर यूज़ करेंगे. ठीक है, आउटर मार्किंग्स यूज़ करेंगे. मैं इनर मार्किंग्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ से. फाइन. यहाँ से अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पर 90 डिग्रीज आ गया, एंड 100, 10, 20, 30, 40 एंड 150. यहाँ पर लिखा है ना 150. सो दिस इज माई 150 डिग्री एंगल ओवर हियर. नाउ बिफोर रिमूविंग इट, मेक श्योर कि आपने रूलर से इसको फिर से टाइट से पकड़ना है और तब अपना प्रोट्रैक्टर मूव करना है. अब प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पे रख के एंड लेट अस जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. फाइन. अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, मैंने आपको कहा था ना डी जहाँ पर प्रोट्रैक्टर आ रहा है, इससे आगे भी लाइन ले जा सकते हैं और इससे छोटी भी रख सकते हैं. इट इज़ सेम थिंग, बट आपकी मेजरमेंट्स ठीक होनी चाहिए. आपने पॉइंट यहाँ पर मार्क किया है प्रोट्रैक्टर से, लेकिन यहाँ पर आपका सर्कल एंड हो रहा है और आपको यहीं तक कट करना है. तो आपको आगे पूरा लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहीं पर इसको ड्रॉ करेंगे. तो हमारे पास ये वाला जो पूरा एंगल आएगा, दिस विल बी 150 डिग्रीज एंगल. फाइन. सो लेट्स कट दिस आउट. अच्छा, आप मुझे ये बता दो, दिस इज अ क्वेश्चन, ये 150 है तो ये कितना होगा. हमें पता है ये पूरा का पूरा कितना है, ये ऊपर हाफ सर्कल में हमने अभी किया था, दिस इज 180 डिग्री. फाइन. तो हाफ सर्कल में इससे मैंने 180 डिग्रीज में से 150 हटा दिया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 30 डिग्रीज. ये वाला जो 30 डिग्री हमने उसमें से कट किया, ये हम यहाँ पर इसमें से भी कट कर सकते थे. ठीक है. अब हमें लेकिन चाहिए कितना, 150 डिग्रीज, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है 150 डिग्रीज. वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस. अब इसको कट कर लेंगे फटाफट से. फाइन. दिस इज 150 डिग्रीज. ये हमारा 150 डिग्रीज का एंगल बन गया. हम इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे. ठीक है, हम इसको ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम इसको ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं. मैं इसको ऐसे पेस्ट कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि हमने सारे एंगल्स इसी साइड की रेस के साथ पेस्ट किए हैं, तो मैं इसके लिए भी इस साइड वाली रे ड्रॉ कर रही हूँ. फाइन. लेट अस ड्रॉ अ रे. And mark the starting point. Now let us paste this. Like this. Okay, now let us draw a ray from this side also.
इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नेम पी क्यू आर वी हैव यूज्ड एनी नेम, डी ई एफ ले लेते हैं, डी ई एफ, ठीक है, पॉइंट्स के साथ में हमने नेम लिख दिया इसका. Make sure to paste everything so nicely and neatly. You can see here that I have pasted everything very nicely. This glue is not coming out from anywhere. So your activity should be like this only. Fine. Now this angle is of 150 degrees. This angle is of 150 degrees. Fine. Now what we have to write here? Angle DEF. DEF is equals to 150 डिग्रीज. ठीक है, एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज. एंगल ई, क्योंकि यहाँ पर ई पर बन रहा है एंगल, इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज. एंड उसके बाद हम इसको एंगल 5 मार्क कर लेते हैं. तो एंगल 5 क्या हो जाएगा हमारा, 150 डिग्रीज. फाइन. सो दिस वॉज योर एक्टिविटी. आई एम शोइंग इट अगेन टू यू that everything is done very nicely and very neatly, and you have to do it in the similar manner. Fine. So see you in the next class. Bye.